Today is the 34th day of Begumpura Bharat Brotherhood Yatra. आज बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा का 34वां दिन है। Right now we are in the land of Baroda. अब अभी हम बड़ोदरा की धरती में हैं। Here Baba Saheb Ambedkar was also working along with Baroda King, who came forward to donate some money for Baba Saheb Ambedkar's education. यहाँ के जो राजा थे सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे छात्रवृत्ति के रूप में दिए थे। उसकी एवज में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यहाँ पे कुछ समय तक के लिए काम किया था। Before I want to start my regular speech, I want to tell one important success story which happened last week. तो इससे पहले कि मैं अपनी रोजमर्रा की बात रखूं, उससे पहले मैं एक हफ्ते पहले की एक कामयाब घटना का जिक्र करना चाहूंगा। Because right now we need a lot of success stories to tell to our people to blast their inferiority complex. क्योंकि हमें जरूरत है, जो सफल कहानियां हैं, जो सफल घटनाएं हैं, हमारे लोगों का जो हीन मानसिकता है उसको सकारात्मक मानसिकता में बदलने के लिए हमें सकारात्मक स्टोरीज की जरूरत। How the inferiority complex remove from their mind? If you continuously talking about discrimination, that assault happened in that place, the people not allowed to drink pond or otherwise in lake or nadi, or some issues were happening in some places, our people not allowed to ride in horse, and one place our people not allowed to have a good mustache also. Lot of issues are in front of us. Whenever we open the WhatsApp or social medias, lot of discrimination issues are roaming in the social media. तो हमारे समाज के साथ रोजाना में भेदभाव होता है, उत्पीड़न होता है। कहीं किसी को घोड़ी चढ़ने से रोक दिया जाता है, किसी को पानी पीने से रोक दिया जाता है, किसी को अच्छी मूंछ रखने से रोक दिया जाता है। अगर हम इन घटनाओं का ही जिक्र करते रहेंगे तो हम अपने लोगों को सकारात्मक माइंडसेट की ओर कैसे लेके जाएंगे? Our people's mindset became a habituate to understand about what type of discriminations are roaming with us. It became a habituate. तो हमारे लोग ये जानने के लिए एक तरीके से हैबिचुअल हो चुके हैं कि हमारे साथ, हमारे समाज के साथ क्या घटनाएं होती हैं। माननीय कांशीराम जी never not ready to talk about lot of failure stories. कांशीराम साहब अपने टाइम में उन्होंने असफल कहानियों को एक्सेप्ट करने, उनको अपनाने, उनको समाज में प्रसारित करना कभी नहीं सिखाया। So the one slogan is more than enough. वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। What है ना, in that slogan he hammered our people's mindset. उनका एक ही जो नारा है वही काफी है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। Before that slogan our people, ये जो नारा है हमारे लोगों के दिमाग को झकझोरने के लिए पर्याप्त। Before that slogan our people thought we will not become a ruler of this country. इस नारे से पहले हमारे लोग ये सोचने में असफल थे कि हम इस देश में शासक भी बन सकते हैं। And also on another one slogan also, the people started to say that slogan. How that slogan also blasted our people's mindset. तो वो दौर था, मानवर कांशीराम साहब को दौर था जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये इस तरीके का माइंडसेट बनना शुरू हो गया था हमारे। That slogan also brought a lot of people, SC, ST, OBCs and religious minority under one umbrella. ये जो स्लोगन है, ये जो नारा है, ये SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लाखों लोगों को एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे संगठित करने में काफी मददगार। It brought a confidence and trust and hope to our people.
ये जो नारा है ये हमारे लोगों में विश्वास, उनके अंदर उत्साह, साहस पैदा करने वाला सिद्ध हुआ। But yesterday when I was in Maharashtra, last 3 days when I was in Maharashtra, the people told to me that when you go to Baroda, you see the one historical place in Baroda. I asked, what is a historical place? What story behind it? That Parsi community slapped Baba Saheb Ambedkar and thrown all the things from out of the Parsi Dharmashal. अभी पिछले 3 दिन में महाराष्ट्र में था, हमारी यात्रा उधर थी। जब मैं उधर था वहाँ के अम्बेडकरवादी लोगों ने हमको कहा कि अब जब आप गुजरात जाएं तो बड़ोदरा में एक ऐतिहासिक स्थान है, वहाँ पे आप जरूर जाना। मैंने पूछा क्या घटनाक्रम है, क्या कौन सा इतिहास है वहाँ। उन्होंने बताया कि वहाँ के जो पारसी लोग थे उन्होंने बाबा साहब को थप्पड़ मार के धर्मशाला से बाहर कर दिया था। तो ये वो स्थान है जहाँ जहाँ बाबा साहब को अपमानित करके बाहर किया गया था, वहाँ आप जरूर जाना। When you go to Baroda, you please visit that place. So that's what I am coming here. This is the place where I am saying where our people are sitting. तो इस वजह से हम इस स्थान पे आए और ये वही जगह जहां हम बैठे हुए हैं। So whether it is a success story or a failure story, ये जो घटनाक्रम है ये सफल घटनाक्रम है या असफल घटनाक्रम? the Parsi community is microscope community among the microscope community. जो यहाँ पारसी समुदाय है वो अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक समुदाय है। Actually still now they are not participate in any army related job. तो ये जो समुदाय है ये किसी सैन्य जो कार्य है, सैनिकों का जो कार्य है उसमें कभी भी ये भागीदार नहीं हो। There is no such a regiment also, Parsi regiment in Indian army. तो इंडियन जो भारतीय सेना है उसमें भी पारसी रेजिमेंट, पारसी बाहिनी नाम से कोई सेना नहीं है। But one side our people are talking that Mahar regiment 500 people killed 20,000 28 Peswa Brahmins at Goregan. Now another side this microscope community thrown all the Baba Saheb Ambedkar things out of the Parsi Dharmashal. How, whether it is any correlating? एक तरफ हम कहते हैं कि 500 महारों ने करीब 28,000 पेशवा सैनिकों को खत्म कर दिया, और दूसरी तरफ यहाँ एक स्टोरी हम बताते हैं कि अल्पसंख्यकों से भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बाबा साहब को दुत्कार के पारसी धर्मशाला से बाहर कर दिया। ये इसमें इन दोनों घटनाओं में क्या किसी तरीके की तुलना हो सकती है? We don't want this type of fake or otherwise false failure stories. Our generation expecting the success stories. इसलिए मैं इस तरीके की जो असफल घटनाएं हैं या मनगढ़ंत घटनाएं हैं उसको मैं अपने लोगों के सामने कभी भी उनका जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि आज की जो हमारी जनरेशन है वो सफल कहानियों को सुनना पसंद करती है, सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहती है। Our people are saying that Sankalp Bhumi. What Sankalp Bhumi? Failure story is a Sankalp Bhumi. हमारे लोग यहाँ इस जगह को संकल्प भूमि कहते हैं। यहाँ जो असफल एक घटना है वो क्या संकल्प भूमि होगी? Recently I read about one Chamar regiment in northeast states, I think so. Mazam, Kohima. In Kohima, the Chamar regiment they fought against Japanese. So there is a very big monument is there. We will go and celebrate that place. मैं आपको एक और जानकारी बताना, जो सेकंड वर्ल्ड वार था उसमें कोहिमा जो यहाँ इंडियन जो आर्मी थी उसमें जो चमार रेजिमेंट थी, उस चमार रेजिमेंट ने कोहिमा में जापानियों की सेना को धूल चटाया था, और वो चमार रेजिमेंट के जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में वहाँ एक विजय स्तंभ बनाया गया कोहिमा में। We will celebrate that spot. तो ये एक सफल, एक प्रेरणादायक स्टोरी है। तो हमें ऐसे स्थानों पे जाके वहाँ उत्सव मनाना चाहिए। And also you see in 1818
The Goregaon youth, our 500 people finished the 28,000 Peshwa regiment. We will celebrate. We all together to celebrate that place. वही यहाँ महाराष्ट्र में कोरेगांव स्थान है, वहां पे 1818 में एक युद्ध हुआ था। उसमें 500 जो शेड्यूल कास्ट और अल्पसंख्यक समुदाय के 500 लोगों ने, उसमें मुख्य तौर पे महार ज्यादा थे, तो इन 500 लोगों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों की सेना का कत्लेआम किया था। ये हमारे समाज के लिए प्रेरणादायक स्टोरी है, ये सफल स्टोरी है। इसलिए ऐसी स्टोरियों को हमें समाज को बताना चाहिए, ऐसी स्टोरियों के माध्यम से समाज को प्रेरित करना चाहिए। In 1994, Kanshiram ji slapped the Manuwadis media. We will celebrate that day as a victory day. 1994 में मान्यवर कांसीराम साहब ने एक पत्रकार को थप्पड़ जड़ा था। मनुवादी पत्रिका है, वो ब्राह्मण ही था, ब्राह्मण पत्रकार को। ये इस तरीके की जो घटना, हमें उस दिन को जो है तो उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। We will celebrate when Baba Saheb Ambedkar entered into the parliament. We celebrate that day as a victory day, as संकल्प दिन ना। जिस दिन बाबा साहब पहली बार संसद भवन में चुन के गए, हमें उस दिन को उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, उस दिन को एक संकल्प के रूप में मनाना चाहिए। So and also when I was in Punjab 3 months before, I read one article which written by Kanshiram ji. He made one geographical area. In that geographical location, 2 or 3 districts, Kanshiram ji given some work to their cadre. This geographical area, discrimination free area, because that area lot of discrimination happened. He told to our cadres, your job is to make this discrimination free area. अभी 2-3 महीने पहले मैं पंजाब गया था, वहां मैंने एक किताब पढ़ी, उसमें एक बात, एक घटनाक्रम का जिक्र था कि मान्यवर कांसीराम साहब ने अपने वहां के लोकल कार्यकर्ताओं को एक भौगोलिक क्षेत्र बनाया नक्शे में, और उसमें बताया कि इस क्षेत्र में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो आप जो कैडर हो इस क्षेत्र को डिस्क्रिमिनेशन फ्री, मतलब भेदभाव मुक्त क्षेत्र बनाना है। Our people are not working like that. Our people are celebrating nowadays. Our people are celebrating the discrimination. लेकिन हमारे लोग मानवर कांसीराम साहब की सोच जैसा कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमारे उत्पीड़न का ही उत्सव मना रहे हैं। What Kanshiram ji was saying, if your opponent throw one stone against you, my follower will throw the 2 stones against that person. कांसीराम जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि अगर हमारा विरोधी हमको अगर एक पत्थर मारे तो हमें 2 पत्थर से जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। How he blasted the mindset of our people. तो इस तरीके की बातें कर उन्होंने अपने लोगों का जो दिमाग है उसको कैसे आंदोलित किया। Today, right now, I got one message from America. He requested me to read that article. That article says about Seattle in America. Seattle bans the caste-based discrimination. The Seattle is the first US cities to becoming a ban the caste discrimination. अभी अमेरिका से हमें एक फोन कॉल्स आई थी, उन्होंने एक आर्टिकल बताया कि कृपया आप इस आर्टिकल को पढ़ें। इसमें अमेरिका के अंदर एक सिएटल सिटी है, वहां पे कास्ट का जो कास्ट आधारित जो भेदभाव है उसको एकदम से उसमें रोक लगा दी गई। Whoever went from India to that place, our people are very much worried about the caste discrimination in America. तो हमारे जो यहाँ के लोग उधर जाते हैं जॉब्स वगैरह के लिए, वो वहाँ जो ये जो जातीय भेदभाव है उससे बहुत परेशान रहते हैं, डर के रहते हैं वो। So now what we are doing, our campaign is also Begumpura Bharat also. We are also roaming throughout the country to make this country as a discrimination free country. But what the Brahmins are doing in America, they are saying that you are discriminating the religion.
How they are saying discriminating a religion means Hinduism means casteism is also part of Hinduism. You, in the name of Hindu, you are in the name of Hindu caste, you are discriminating the religion. That their argument is like that. Brahminical argument is like that. Out of 7, 6 people casted the vote favor to caste, ban the caste discrimination. 1 person favor the caste is necessary for. How the Brahminical forces are, they went from here and they settled at there and they wanted to promote the caste system at America means what our people are doing here. हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा को संचालित कर रहे हैं। अभी अमेरिका में जो यहाँ से ब्राह्मण अमेरिका में जाके रहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो धर्म है, धर्म के अंदर भेदभाव होता है। तो जो धर्म के, हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म में जातियों का बंटवारा, जातीय भेदभाव है। वहां 7 लोगों में से 6 लोग जो है वो धर्म में जाति का जो भेदभाव है उसको समाप्त करने के पक्ष में थे, लेकिन एक व्यक्ति उसको बनाए रखने के पक्ष में उसने मत दिया। तो इस तरीके से वो यहां से जाके अमेरिका में भी अपना जो ब्राह्मणवाद है उसको स्थापित करना चाहते हैं। So how they are ideologically they are functioning in when they go from this land to that land also they are carrying their ideology. Based upon their ideology they are doing their action also. ये समझने वाली बात है कि वो किस तरीके से अपना जो इनका जो षड्यंत्र है उसको, जो इनकी विचारधारा है उसको किस तरीके से फैलाते हैं। वो यहाँ से अगर अमेरिका भी जाते हैं वो अपनी विचारधारा को उधर भी फैलाने का काम करना बंद नहीं करते। How you see now that action is more important than the words. ये जो शब्द है, शब्द से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आपका कार्य है, आपकी कार्यवाही है। You people are talking about Baba Saheb Ambedkar. When it comes to the action, you people are not ready to do that. So then what is the meaning of the words? आप लोग बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में खूब बात करते हैं, लेकिन जब उनके कार्य को साकार करने की बात आती है तो आप मौन धारण कर लेते हैं। फिर इन बड़ी बड़ी बातों का क्या मतलब रह जाता है? Kanshiram ji not speaks so much. Whatever he wanted to speak through his action, he did it. कांसीराम साहब बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जो वो कहते थे उसको वो करते थे। That's what I am telling to you, that you don't speak so much, but your action should speak to our community. तो इसलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा बातें करना बंद करिए और काम करिए। आपका काम आपके समाज को प्रेरित करने वाला होना चाहिए। You are having a lot of wealth that will not count by our people. आप बहुत सारे साधन संसाधन आपके पास होंगे, लेकिन वो समाज के लिए उसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है। Maybe you are a very big scholar, or otherwise you are having a lot of philosophy in your mind, but without action, our people not count words in a larger manner. तो आप एक अच्छे शोधार्थी होंगे, आप एक अच्छे विद्वान होंगे, लेकिन अगर आप उसको कार्य रूप में नहीं बदलते हैं तो जो समाज है उसको उस तरीके से नहीं देख पाएगा। Your action will always speak volumes louder than your words. आपका जो कार्य है वो आपके जो शब्द है उससे कहीं ज्यादा बोलना चाहिए। So we are doing whatever our Kanshiram ji said by his words. We are BDP is in action. तो कांसीराम साहब ने जो कुछ कहा है, आज बहुजन द्रविड़ पार्टी उसको कार्य रूप में परिवर्तित कर रही है। We are in Gujarat. Yesterday when we crossed the border, lot of nails welcomed us. अभी हम गुजरात में हैं। कल रात को जैसे ही हमने महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस करके गुजरात में प्रवेश किया तो रोड में हमारी गाड़ियों के सामने कील बिछाकर हमारा स्वागत किया गया। Lot of like a flowers, they throw the nails in the. तो वहां पे
इतनी सारी कीलें बिछी थी, जैसे कोई फूल बिछाता है ना, उस तरीके से वहां कीलें बिछी हुई। You are giving a flower to us, but that Manuwadis are throwing the nail in front of us. आप हमें फूल दे रहे हैं, लेकिन जो मनुवादी ताकतें हैं वो हमारे रास्ते में कील बिछा रहे हैं। We have won, but they admitted their defeat. तो ये जो घटना है ये बताती है कि हम विजयी रहे हैं और ये पराजित हुए हैं। And also why I call our sister Swati, why I called today means 23rd day in 1908, before 1908, February 23rd as the Women's Day, International Women's Day. Today is there. Actually after that only they changed it to March 8. बहन स्वाति प्रेम को क्यों इधर बुलाया है, क्योंकि आज 23 फरवरी है और ये 23 फरवरी वुमेन्स डे, Women's Day, International Women's ये Day. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। So after 1908 only it changed the International Women's Day on March 8th. लेकिन 1998 में इस दिन को बदल के मार्च में इसको शिफ्ट कर दिया गया। Today in Russia the people are celebrating. Today the day is called as a Defenders of Fatherland. आज के दिन रशिया में Russia. आज के दिन रशिया में पितृभूमि संरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का In Russia, every youth has to understand about how to defend our states, country. तो रशिया में जो 2 years or 3 years course, I think so. They have to learn the military, how to defend, how to रशिया win. का जो यूथ है उसको 3-4 साल जो वहाँ की फौज है उसमें ट्रेन किया जाता है कि कैसे रशियन जो भूमि है उसको सुरक्षित करना है। Yes, they are a subject main, one of the main subject. Also, there are 2 years, 3 years subject. Every youth has to learn that military defense education. ये जो सैन्य सुरक्षा का जो सब्जेक्ट है उसमें करीब 3-4 साल तक ये विशेष तौर पे पढ़ाया जाता है कैसे आपको रशियन भूमि को सुरक्षित रखना। Actually, that education is only for the men. ये जो शिक्षा है ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। So that's what today the Russian women's and girls and father and their mother, they distribute the flower to the youth today. तो आज के दिन जो रसिया की औरतें हैं, वहाँ की लड़कियां हैं, उनके फादर्स हैं, वो सब युवाओं को फूल भेंट करने का उत्सव मनाते हैं। So we are also the defenders of the motherland. तो हम लोग भी इधर मातृभूमि के संरक्षक लोग हैं। We are also defenders of our fatherland. हम लोग भी जो पितृभूमि के संरक्षक लोग हैं। It is a land of our Baba Saheb Ambedkar. It is a land of Kanshiram. It is a land of Periyar. It is a land of Savitribai Phule. It is a land of Jyotirao Phule, Sagu Maharaj. This is a land of Birsa Munda. So we people are concerned about how to save our country. ये जो भूमि है ये हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों की है, इसलिए हमें इस बात के लिए चिंतित होना चाहिए इस भूमि को हम कैसे सुरक्षित रखें। So Subedi, you have to give a flower to everybody because we are all defenders. तो मैं स्वाति बहन से अनुरोध करूंगा कि आप सबको फूल वितरित कर सम्मानित करें, क्योंकि हम सब लोग जो है तो इस धरती के संरक्षक लोग हैं। Because we are saving, we are the defenders of this land. क्योंकि हम लोग इस देश के असली सुरक्षक हैं। So that's what I am telling to the people, especially Bahujana Dravida people. Hereafter, don't educate or don't teach to our own children, this generation about a failure stories. इसलिए मैं विशेषकर अपने बहुजन द्रविड़ समाज से ये कहना चाहता हूँ, जोर दे के कहना चाहता हूँ
कि कम से कम ये जो नई जनरेशन है, इसको आप जो हमारी असफल घटनाएं हैं, असफल कहानियां हैं, उसको सुनाना बंद करो। It will not give a productive to for us. If you tell about the failure story, it will not bring the victory. It will not give any productivity, and it will not also, our people also, the practice also more important. It will not teaching any practices also. You don't tell hereafter any failure stories to our children. ये जो असफल कहानियां हैं, ये असफल कहानियां अपने युवा पीढ़ी को सुनाना बंद करें, क्योंकि ये जो असफल कहानियां वो आपकी पीढ़ी को कोई प्रेरणा नहीं देने वाली, किसी तरीके की सकारात्मक शिक्षा नहीं देने वाली, इसलिए इनको सुनाना बंद करिए। Success stories. If you want about the success stories, you go and learn Kanshiramji. Kanshiramji is in front of us, the ideal of success story. अगर आप सफल घटनाओं को जानना चाहते हैं और अपनी पीढ़ी को बताना चाहते हैं, तो आप कांसीराम जी का अध्ययन करें। कांसीराम जी सफल कहानी के एक वो प्रतीक हैं, सफल घटनाक्रमों के प्रतीक हैं मान्यवर कांसीराम जी। If we learn more about Kanshiramji, we can easily fulfill our all the Mahapurush dreams. अगर आप मान्यवर कांसीराम जी को जान जाते हैं, तो आप हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का जो मिशन है उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। Because we are also in the path of Kanshiram. What is our desire? Our desire is to make this country as a Begumpura Bharat. तो चूंकि हम लोग भी मान्यवर कांसीराम साहब के रास्ते पे चल रहे हैं। हम लोगों की जो चाहत है वो क्या है? हम लोगों की चाहत इस देश में बहुजन द्रविड़ समाज को शासक बनाना है। One side they are taking a pledge, on another side this hand is selling to the Manuvad. Then what is the use of Sankalp? तो एक तरफ हम संकल्प ग्रहण करते हैं और दूसरे हाथ से हम अपना जो वोट है वो मनुवादियों के हाथों में बेचते हैं। तो फिर इस तरीके का चरित्र का, इस तरीके के संकल्प का क्या उपयोग है जीवन? Peoples are not fool. They are watching your actions and words also. जो लोग हैं वो मूर्ख नहीं है, वो आपका कार्य और आपके जो शब्द है सब कुछ देख रहे हैं। One side a person is in with the Aam Aadmi Party, on another side he is taking the oath. Whether their words and behaviors correlated? तो एक तरफ आप आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होते हो और दूसरी तरफ आप संकल्प लेते हो, तो आपका जो कार्य है और आपका जो एक्शन है उसमें क्या कोई समानता नजर आती है? BDP is what we are telling to the people. According to that, we are doing our action also. बीडीपी लोगों को जो कहती है उसी के हिसाब अपना काम भी करती है। We are believe in action. क्योंकि हम लोग कार्रवाई पे विश्वास रखते हैं, कार्य में विश्वास रखते हैं। That's what you people are seeing, that we are in the action, we are in the field, not in the four walls. इसी कारण से आप हम लोगों को क्षेत्र में देख रहे होंगे। पिछले 35 दिनों से हम लोग फील्ड में है, कोई चार दीवारी के अंदर बैठ के हम डिस्कशन नहीं कर रहे। Thank you very much. जय कांशीराम, जय समाप्त करता हूँ। जय पेरियार, कांशीराम, जय पेरियार, जय बेगमपुरा भारत, जय बेगमपुरा भारत। थैंक यू, धन्यवाद।